Hello. So, new topic, new chapter of your CA final auditing, chapter 9, audit of banks. Okay, before going further, I hope by now you have done all the YouTube things. Okay, by YouTube things, I mean like, share, subscribe, comment. Okay, and you are understanding the concept. So, I will get to know if you like it. You are subscribing means you are understanding. So, I can upload the more videos. Okay, so banks. See, banking business is very much different than the other businesses. This has certain characteristics which we have to understand and which makes banks different, and because of this characteristics there is certain special considerations which auditor has to taken care of while auditing. ठीक है ना? तो we will go to the characteristics of the bank, but before that we have to understand what is the overview of this chapter. What are the all things we are going to understand? We have to understand what is the legal framework, जो हम बोलते हैं ना AFRF, applicable financial reporting framework. तो auditor will be more concerned about this. So what is going to be the legal framework which will be applicable to the banks? Then we have to understand the form and content of financial statements. Form and content of financial statement of bank. It is different than the financial statements of bank, other companies. ठीक है, these are okay. I will explain it while we go to this point. Okay, next thing which we are going to understand is audit of accounts. So how the audit will be conducted, who will conduct the audit, auditors report. See, why this thing? Because these are the things which are different than the auditing of the other companies. So next is CRR and SLR requirement, very important. Cash reserve ratio and statutory liquidity ratio which bank has to maintain. Okay, I will okay, CRR, I have my own definition for this. CRR I call it cash at bank, तो बैंक के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, एंड SLR इज कैश एट हैंड, तो बैंक के हैंड में कितना पैसा है. जैसे हम बिजनेसेस के केस में देखते हैं ना कैश एट बैंक, तो सिमिलरली CRR इज बैंक का कैश एट बैंक एंड दिस इज बैंक का कैश इन हैंड. ठीक है. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द conducting of audit, how audit is going to be going to conducted, and what are the all points, different points which are there. Then we are going to understand the IFC, internal financial controls on certain areas, very important. Control testing at banks level is very very important. Then we are going to understand verification of assets and liabilities. Why? Because the items of assets and liabilities which will be at the bank's balance sheet are little bit different, so that we have to specifically understand. Then concurrent audit, you all must be aware of it. तो concurrent audit, ये जो बैंक की concept, बैंक में जो concept दिखी जाती है, that we need to understand. And then we are going to understand what is going to be the role of audit committee. तो बैंक के केस में ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ऑडिट कमेटी इन द ऑडिट ऑफ बैंक. ठीक है, तो ओवरऑल 9 पार्ट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो क्विकली we will understand the banking business by knowing its characteristics and what all special consideration because of these characteristics, what are all the special consideration which auditor has to look after, and then we will start with this 9 parts. ठीक है. तो why banking is different than the other businesses? So for that we have to check the characteristics पे specifically question नहीं आएगा, but you should know this because this is the basics. So unless your basics is clear, how will you understand the other things, है ना. तो very simple, बैंक है तो large volume of monetary items, large volume of
मॉनेटरी आइटम्स, ऑब्वियसली सब पैसे का ही तो है. मॉनेटरी आइटम्स, बैंक डील्स विद द मनी स्पेशली. तो मॉनेटरी आइटम्स का लार्ज वॉल्यूम, that's the thing which makes bank different from the other businesses. Then large variety of transaction. yes, वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब अदर देन जो ट्रेडिशनल बैंकिंग जो हम बोलते हैं, लेंडिंग एंड डिपॉजिट, बैंक हैज़ गॉन मच अहेड ऑफ दिस नाउ ना. NEFT बैंक ट्रांसफ़र है, तो ट्रांसफ़र के डिफरेंट टाइप से अभी जो कैशबैक्स मिलते हैं हमें, सो मेनी, जैसे फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज के जो भी ट्रांजैक्शन है, तो देर आर n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर टेकन प्लेस एट द बैंक. तो लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज़ नोटिस्ड एट बैंक. देन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. वॉल्यूम यू कैन इमेजिन, आपने कभी खुद का पासबुक प्रिंट करवा के लिया है? चेक करो कभी कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें. तो वी विल बी वेरी स्मॉल अकाउंट होल्डर्स, तो हमारे इतने ट्रांजैक्शन होते हैं. तो बैंक के नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सो यू कैन इमेजिन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी देयर, है ना. देन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ IT. वाइड स्प्रेड यूज ऑफ IT, एक्चुअली इट्स टोटली IT डिपेंडेंट नाउ. एंड IT के वजह से ना, वी हैव ऑल्सो सीन इट इन योर लास्ट चैप्टर, स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ दिस IT एनवायरमेंट. तो बिकॉज ऑफ दिस IT रिस्क विल बी देयर. तो those IT related control also bank has to implement, and auditor need to check IT related risk also we have to taken care of. So this will come because of this characteristics only the special considerations will be. So this will be also one of the special consideration. Then comes up wide network of branches. इतने किसी businesses में branches नहीं होते जितने बैंक के business में होते. So wide network of branches, that is also makes bank different. Then off balance sheet items, number of off balance sheet items is very large at the bank. What can be the example of this? BG, bank guarantees, letter of credit, है ना. तो this is in. Then बैंक का एक कैरेक्टरिस्टिक है, transaction recorded at different place, whereas this transaction is actually initiated at different place. ATM, तो ये दो चीज़ें होती है बैंक के इसमें, ठीक है ना. एक जगह पे ट्रांजैक्शन होता है और रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका अकाउंट होगा वहाँ पे. नॉट नेसेसरी यू हैव अंडरटेकन. ऑल्सो बैंक ऑल्सो अलाउज यू ना टू, आपकी होम ब्रांच के अलावा भी अगर अदर ब्रांचेस है ऑफ द सेम बैंक, दे अलाव यू टू डू द सो मेनी ट्रांजैक्शन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. देन ये भी होता है. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बैंक के, इनिशिएशन से रिकॉर्डिंग तक, दिस ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एम्प्लॉय, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय. जैसे अभी आप नेट बैंकिंग के जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर अगेन द एग्जांपल ATM विल ऑल्सो बी एग्जांपल हियर. यूर नेट बैंकिंग के थ्रू वट एवर ट्रांजैक्शन यू कैरी आउट, NEFT हो गया जो भी है, तो दिस अलाउज यू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑल्सो, वन ऑफ द एग्जाम्पल. तो ट्रांजैक्शन इनिशिएट से रिकॉर्डिंग तक हो जाते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय. एंड पेमेंट सेटलमेंट जो बैंक के केस में होता है, अब देखो ये ना, बिकॉज ऑफ दे अलाव यू, आप ओके आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल ऑफ ATM अगेन. आपका ATM एक्सिस बैंक का है तो भी दे अलाव यू टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम एनी अदर, लेट्स से HDFC बैंक ऑल्सो और एनी अदर बैंक, है ना. और सेम एक्सिस टू एक्सिस भी डिफरेंट सिटी है तो भी दे अलाव यू टू विड्रॉ द मनी.
तो पेमेंट सेटलमेंट जैसे चेक होते, चेक जो इशू होते हैं वो अलग बैंक का चेक, आपका अकाउंट अलग बैंक का, तो पेमेंट सेटलमेंट थ्रू होता है। आप जो भी आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो भी ट्रांजैक्शन है, तो इन ऑल दिस ट्रांजैक्शन दिस पेमेंट सेटलमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। तो दिस पेमेंट सेटलमेंट जो होती है इसमें रिस्क भी होती है, ठीक है, तो रिलेवेंट रिस्क इज ऑल्सो गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बैंक के किस में बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। हैंग हो गया ये, ओके। तो और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो बैंक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच मेक्स ऑडिटर टू स्पेशली कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, तो ऑडिटर हैज़ टू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ ट्रांजैक्शन। तो रिस्क जैसे ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के रिलेटेड रिस्क अलग अलग है, तो दैट ऑडिटर नीड टू टेकन केयर ऑफ। देन स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिटर विल कम इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन। हमने देखा है लार्ज वॉल्यूम, तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए, तो उसके वजह से सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू द रिस्क, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स बढ़ गए, ठीक है ना। देन एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी, तो वी हैव सीन द यहाँ पे है ना, कहाँ पे, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आईटी, तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ आईटी, this auditor need to taken care of. Then we have to take care of and check the effect of regulatory requirement. RBI के बहुत सारे requirements होते हैं, notifications which banks has to compulsorily follow. Then बैंक के केस में एक चीज़ होती है कि continuing development of products, तो नए नए प्रोडक्ट आ रहे बैंकिंग के, ट्रांजैक्शंस of products and transactions, तो इसकी वजह से एक चीज़ है उनके नए प्रोडक्ट आ रहे नए, तो अकॉर्डिंगली हमारे ऑडिटिंग में तो चेंज उतने डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे ना, ऑडिटिंग के जो भी अपने प्रिंसिपल्स है एंड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट चेंजिंग इन लाइन विद दिस, तो दिस थिंग इज क्रिएटिंग अ इशू फॉर द ऑडिटर्स, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच ऑडिटर नीड टू टेकन केयर ऑफ। हाँ, वन मोर थिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग, एंड नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग की वजह से दिस इज अगेन एक्सपोजर, दिस प्रोडक्ट एक्सपोजर विल come into the picture. So these are the characteristics of banks because of which auditor have to taken care of certain things, and these are these 6 points. Okay, and now we will start with the understanding. I hope you have understood this, है ना। इमेजिन करो यार बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो, तो अकॉर्डिंगली यू विल अंडरस्टैंड. सो नाउ वी विल गो बाय वन दिस 9 पॉइंट्स. तो फर्स्ट थिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग नाउ इज legal framework. So what is the legal framework of the bank? So what are the all laws and regulations applicable to the bank? Legal and this is comes under your essay 315 understanding, and your essay 250 requires you to see the compliance with the laws and regulations. ठीक है ना. तो what is the legal framework? बैंक है तो Banking Regulation Act which is applicable. देन बैंक को एप्लीकेबल क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट RBI एक्ट,
1934। SBI का अलग से एक्ट है, SBI एक्ट 1955। हाँ, SBI एक्ट एंड SBI सब्सिडीरीज एक्ट इज डिफरेंट। तो SBI सब्सिडीरीज बैंक जो एक्ट है दैट विल कम इनटू द पिक्चर, एंड बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट के लॉज, ऑल दी पेमेंट एंड सेटलमेंट लॉज, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी एप्लीकेबल टू द बैंक, कंपनीज एक्ट, इफ बैंक इज अ कंपनी, बैंकिंग कंपनी है तो कंपनीज एक्ट विल बी अप्लीकेबल। देन यूज़ ऑफ IT की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। देन पेमेंट एंड सेटलमेंट हो गया। सिक्योरिटाइजेशन जो होता है बैंक के केस में, तो बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटाइजेशन एंड reconstruction of financial assets, securitization, reconstruction of financial assets and enforcement of security interests. So these are the laws and regulations. So this is the legal framework of it. So these are the laws which are applicable to the bank. And then next point we are understanding is what is going to be the form and content of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा? अगर अपनी लेट्स से नॉर्मली इन अदर केसेस में बैलेंस शीट जो है एंड P&L वो कैसे बनता है? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। हाँ, और अगर बैंक है तो ये जो बैलेंस शीट एंड P&L बनेगा, तो बैलेंस शीट इज फॉर्म A एंड P&L इज फॉर्म B ऑफ, दिस इज ऑल्सो थर्ड शेड्यूल ओनली, बट ये यहाँ पे कंपनीज एक्ट का आता है एंड यहाँ पे आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्म एंड कंटेंट। तो बैंक है तो बैलेंस शीट एंड P&L बनेंगे एज पर शेड्यूल 3, थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और बैलेंस शीट के लिए होता है फॉर्म A, P&L के होता है फॉर्म B, ठीक है। थर्ड पॉइंट which we have to understand little bit now lengthy than this two, this is very basic, audit of accounts। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ओके। बैंक के केस में प्रैक्टिस क्या होती है ऑडिट के लिए? वो दे यूजुअली अपॉइंट जॉइंट ऑडिटर्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। एंड नेटवर्क, जियोग्राफिकल नेटवर्क, ये भी बहुत ज़्यादा इसके लिए जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं। एंड दे अपॉइंट अ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं उनके। तो मैं यूजुअली सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर से उसको प्रोनाउंशिएट करती हूँ, तो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ये मुझे इजी जाता है इसलिए, ठीक है। तो अपॉइंट करेंगे एंड एज पर लॉ हु कैन बी द ऑडिटर? क्वालिफाइड पर्सन। तो लॉ में इतना ही बोला है दैट क्वालिफाइड पर्सन कैन कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, दे विल अपॉइंट अ जॉइंट ऑडिटर्स, तो ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी बहुत सारे फर्म्स होंगे CA के, एंड यहाँ पे जो बैंक है तो बैंक विल अपॉइंट देम, तो बैंक विल सेंड लेटर टू ऑल ऑफ देम, everyone bank will send this letter। तो we have to understand what all the things which will be mentioned in this letter। तो इसमें क्या क्या मेंशन होगा? इसमें मेंशन होगा व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट। दिस लेटर विल बी सेंड टू एवरीवन, दैट इज़ एवरी ऑडिटर, है ना। तो इसमें होगा पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, what all are the particulars of other auditors। तो सबको जा रहा है ना, तो एवरीवन नो हु ऑल आर द अदर ऑडिटर्स। सो अदर जो भी उनके सेंट्रल ऑडिटर्स है उनके डिटेल्स होंगे इसमें। देन प्रीवियस ऑडिटर्स के डिटेल्स, तो प्रीवियस ऑडिटर्स डिटेल्स। देन अपॉइंटमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट होते, ऑल दी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब क्या, ऐसे कौन सा इसमें रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस,
your SA 210. So whether all those requirements are complied and how that will be complied, ठीक है ना. एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो इनको ये भी बताया जाएगा कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है बिटवीन दोज ऑडिटर्स, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स विच बैंक विल सेंड टू द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. हाँ, अब सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स विल कंडक्ट द ऑडिट एंड ये इनको क्या देंगे, ऑडिट रिपोर्ट देंगे बैंक को. तो along with this audit report they are required to give few more details and those more details I'm dividing into 3 parts. एक तो certain areas पे उनको certificate देना होता है, certain areas पे उनको reporting करनी होती है and few other things. इसमें 2-3 पॉइंट आएंगे, ठीक है. तो वी विल फर्स्ट सी ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके लिए दिस सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अलॉन्ग विद दिस ऑडिट रिपोर्ट विल गिव द सर्टिफिकेट. तो हम पहले देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट किस किस चीज़ में दिए जाएंगे, ठीक है. तो दे हैव टू गिव द सर्टिफिकेट. फर्स्ट विल बी ऑन रिकन्सिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय बैंक. और ये जो रिकन्सिलिएशन देंगे ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें दोनों इंक्लूडेड होंगे, ओन इन्वेस्टमेंट प्लस पीएमएस बैंक्स अकाउंट. तो पीएमएस बैंक्स अकाउंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अंडर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है दैट ऑल्सो, एंड बैंक के ओन इन्वेस्टमेंट. ऑन दिस थिंग दिस सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल गिव द सर्टिफिकेट. देन दे हैव टू गिव सर्टिफिकेट ऑन compliance in key areas, compliance in key areas of prudential, ठीक है. तो whether those are complied or not, so that certificate will be given. Again they have to give certificate in respect of custody of unused bank receipt. तो ये जो अनयूज्ड बैंक रिसीट के जितने भी फॉर्म होंगे उसके ऊपर प्लस देयर यूटिलाइजेशन. बैंक रिसीट पता है ना, कोई भी चीज़ का हमें जो काउंटर रिसीट मिलती है बैंक से, दैट. देन हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस. तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस है, ये कब आएगा, इफ़ बैंक्स आर लिस्टेड, ओनली इफ़ बैंक्स लिस्टेड. तो लिस्टेड बैंक्स के केस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेट आएगा. फिफ्थ थिंग ऑफ सर्टिफिकेट विल बी, ये आएगा वेरियस इंटरेस्ट सब्सिडी एंड सबवेंशन. इंटरेस्ट सब्सिडी एंड सबवेंशन. सब्सिडी एंड सबवेंशन क्या होता है बताया गया, गवर्नमेंट बोरो करती है. लेट से अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो गवर्नमेंट विल से 6% बैंक यू चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, 2% वी विल बेयर. ये यूजुअली किस केस में होता है, क्रॉप लोन्स होंगे, फार्मर के जो भी लोन्स होंगे, या फिर एजुकेशन लोन्स एंड द होम लोन्स, स्पेशली टू हेल्प द जनरल पब्लिक. ये होता है इंटरेस्ट सब्सिडी एंड सबवेंशन. तो सब्सिडी मतलब वही रेट कम होगा, एंड सबवेंशन इज ऑल्सो सेम कि पार्शियल इंटरेस्ट दिस गवर्नमेंट विल बेयर द पार्शियल इंटरेस्ट. ऐसे होता है इसका सेटलमेंट, गवर्नमेंट बेयर पार्शियल इंटरेस्ट, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स इन केस ऑफ विच द ऑडिटर नीड टू गिव द सर्टिफिकेट. रिकन्सिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज में दोनों आएंगे. देन की एरियाज ऑफ प्रूडेंशियल, कस्टडी ऑफ अनयूज्ड बैंक रिसीट एंड उनके जो भी यूटिलाइजेशन हुआ है वो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, एंड इंटरेस्ट सब्सिडी एंड सबवेंशन, ठीक है. एंड देयर आर सर्टन एरियाज with regards to which central statutory auditor need to give the report. तो रिपोर्टिंग कौन से केस में होगी, दैट वी विल नाउ सी. वेरी फर्स्ट, इफ इट्स अ बैंकिंग लेट्स से कंपनी है, तो योर कंपनीज एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑडिटर्स टू कमेंट एज पर 143(3)(I), ठीक है ना, ऑन व्हाट, IFC. तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे ऑडिटर नीड टू गिव द रिपोर्टिंग, ठीक है.
देन आएगा बैंक के केस में कंप्लायंस विथ SLR रिक्वायरमेंट। तो बैंक के SLR रिक्वायरमेंट में बैंक ने कंप्लायंस किया कि नहीं किया, ठीक है ना। ओके, SLR रिक्वायरमेंट्स है, करंटली रेट क्या है पता है SLR का 21.5। तो दिस इज द लिक्विडिटी रेशो, बैंक हैज़ टू मेंटेन द लिक्विडिटी दिस इज ओके। डोंट गो विद द वर्ड्स, मैंने ऊपर कैश इन हैंड बोला था इससे ना, तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली कैश, इसमें कैश भी इंक्लूड होता है, गोल्ड ऑल्सो इंक्लूडेड एंड सम परमिटेड सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट ने जो भी परमिटेड सिक्योरिटीज़ है ना, तो जो भी गवर्नमेंट ने अलाउ की है बैंक को इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दिस ऑल थिंग्स पुट टुगेदर इसको 21.5%, नो दिस शुड बी 21.5%, ठीक है। देन ओके 21.5% ऑफ वो तो बोला ही नहीं, टाइम डिपॉजिट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो yes, we are going to have the detailed discussion when we will be studying this SLR and CRR part, ठीक है ना। Then bank they have to give report on whether these operations जो बैंक के हैं, whether those operations are conducted as per RBI's regulation। तो whatever the circulars of RBI, whether those are conducted as per RBI guidelines, as per RBI के जो भी instructions guidelines है, तो whether the operations are conducted as per those guidelines or not, ठीक है। Then next part, this auditor need to give report on most important in case of bank, income recognition, है ना। Then asset classification and provisioning, asset classification and provisioning। तो whether all these things are happening as per RBI's guideline or not, तो इनके केस में भी RBI की गाइडलाइन फॉलो हो रही कि नहीं, दैट सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू चेक एंड कमेंट, एंड ऑल्सो दे हैव टू रिपोर्ट एज पर 143.12। क्या होता है 143.12? फ्रॉड। तो सीरियस इरेग्युलरिटीज इफ नोटिस, तो सीरियस इरेग्युलरिटीज है तो देन ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट अबाउट इट। देन ऑडिटर दिस घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी, तो जो भी इनके गाइडलाइंस है, घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी, तो इनके जो भी रिकमेंडेशंस है ऑन फ्रॉड, ठीक है ना। तो फ्रॉड रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू फ्रॉड, तो वेदर दोज आर फॉलोड और नॉट, दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर नीड टू कमेंट। तो ये जो है ना एक्चुअली रिकमेंडेशंस रिलेटेड जिलानी कमेटी एंड घोष कमेटी, उनके कंकरेंट ऑडिट जो है जो वो भी इसके अंडर ही आता है, चेकिंग ऑफ दैट। एंड कुछ तो आई थिंक 25 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पार्ट्स की कुछ तो फॉर्म आती है, उसमें ऑडिटर को कमेंट करना होता है। देन दे हैव टू रिपोर्ट ऑन दिस adverse this credit deposit ratio, but adverse credit deposit ratio at rural bank। ओके, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो मतलब क्या होता है, देखो बैंक का जो बैलेंस शीट है, ठीक है ना, तो इनके जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, ठीक है, तो बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स है दिस इज़ लाइबिलिटी फॉर बैंक, एंड जो भी बैंक ने लेंड की है मनी, क्रेडिट जो भी लेंड किया दैट विल बी असेट। तो हाउ मच क्रेडिट इज़ गिवन आउट ऑफ दिस डिपॉजिट्स, और जो कैपिटल के आउट ऑफ कितना है ना, तो कैपिटल के आउट ऑफ, तो दिस विल अफेक्ट दिस थिंग अफेक्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऑल्सो। हाउ I will explain it at the time of this explaining capital adequacy ratio। तो how much money is given on what credit given as a loan out of this deposit, तो this thing we have to check, है ना। capital adequacy ratio is higher the better,
मतलब इसमें से पैसा ओन, इसमें से तो कम जाएगा, इसमें से ज़्यादा जाएगा। जितना यहाँ से कम आप कर रहे हो लेंडिंग, उतना दैट कैपिटल विल बी अवेलेबल टू एब्जॉर्ब द लॉसेस, है ना। तो एब्जॉर्ब करेगा तो आपका रेशो जितना हायर होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो दिस नीड टू check तो how much bank is lending out of this deposit. So these are the thing on which auditor need to give the reporting, whether IFC is there, fraud के related, then compliance SLR requirement की है कि नहीं, operation as per guideline है, income recognition, asset classification, provisioning whether it is as per RBI guideline, then Ghosh committee, Jilani committee recommendations relating to fraud are followed or not, and adverse credit deposit ratio at rural bank, that this auditor need to check. And the third category was other. What are the other things? बैंक के केस में जो होता है LFAR जो बोलते हैं हम, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, दैट ऑडिटर हैव टू चेक, है ना. देन हाउ द असेट आर मैनेज्ड, हाउ दिस असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट इज डन, that auditor need to comment upon. And third thing auditor will this authentication of capital adequacy ratio, है ना. तो हायर द बेटर होता है. हाँ, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू नो योर बैंक ना, ऑलवेज चेक दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है उनका. यू कैन चेक so many other ratios are there, those. Okay, and they have to also give a disclosure. हाँ, disclosure requirement जो है, जो भी है, whether those are followed or not. So these are the other things which comes under this along with audit report. So many things to do ना. Okay, तो ये लेटर देंगे, उसमें these things will be mentioned. The statutory auditor will give this audit report, and along with this audit report it gives certificate on this 5 thing, will do reporting on this 7 thing, and this additional 3 things. So this is what. Okay, third point था ना ये, audit of account. Okay, before going this जब हमने ये देखा ना, auditor and bank they will send the letter. तो ये जो लेटर यहाँ पे सेंड करेंगे ठीक है, बट इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है तो वो कैसे कैसे, कौन सा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे कैसे होगी. ओके, हु विल अपॉइंटेड, उसमें एक चीज़ है, इफ़ इट्स अ रूरल रीजनल बैंक, तो दैट concerned bank will appoint. Okay, if it's a SBI के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट इज़ डन बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है. बट इन दोनों केस में ये कंसर्न बैंक का है या फिर SBI का है, इन दोनों केस में दे हैव टू गिव लाइक चेक द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. इन दोनों के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व. SBI अगर सब्सिडियरी है कोई, तो उसका ऑडिटर अपॉइंट करेगी SBI की सब्सिडियरी है तो, ठीक है. देन अगर बैंक इज़ अ कंपनी, इफ़ इट्स अ बैंकिंग कंपनी, देन शेयर होल्डर्स, हाउ, थ्रू AGM, जैसे नॉर्मली कंपनीज के केस में होता है. इफ़ इट्स अ नेशनलाइज्ड बैंक, देन हु विल अपॉइंट, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट, ठीक है. एंड इन दोनों के केस में, बैंकिंग कंपनी एंड नेशनलाइज्ड बैंक के केस में, दे हैव टू चेक विथ RBI. तो इसमें रिकमेंडेशंस ऑफ RBI विल कम, हियर सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ऑडिटर्स रिपोर्ट. ओके, वेरी स्मॉल पॉइंट. इसमें क्या है देखो, अंडरस्टैंड. इफ़ इट्स अ नेशनलाइज्ड बैंक और इफ़ इट्स अ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, then along with your audit report, one report is submitted to the central government, and this report contains few details.
Okay, so if about balance sheet, whether it gives true and fair view. This is the content of the report which is submitted to the central government in case of nationalized bank and SBI. Whether profit and loss account shows the true balances of profit or loss as the case may be. Whether information or explanation as required by auditor, whatever information and explanation that auditor has called, whether that information has been provided or not to the auditor. Then the transactions, not all the transactions, we have seen the characteristics wherein one characteristics was volume of transaction, तो सब नहीं आएंगे. Comes to the auditor's notice whether they are within the powers of bank. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज सैम्पलिंग बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शंस चेक किए वो. देन ऑल द रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिसेस ऑब्लिक ब्रांचेस, तो ब्रांचेस के रिलेटेड जो भी डेटा मिला है ऑडिटर को, वेदर दैट information was adequate or not, that auditor need to comment in the report which they will submit to the central government. Okay, then other matters, if it's important, so in the opinion of auditor it is important to bring to notice of central government, then that thing should be mentioned. So for the nationalized bank and the SBI, one report will be submitted to the central government on which this this point will be mentioned. ठीक है. Now next point is format of audit report. Okay, अब audit report submit कर रहे हो means you are at the end of your auditing is done ना. Now disclosure requirements and all opinion thing will come, hence your 700 series will come, your essay 700 series. Okay, तो इसमें all essay 700 shall be complied, means auditor you need to form the opinion. Forming an opinion it talks about, so that auditor need to check. Then essay 705 will come, modifications depending upon materiality of misstatement, modification will be done. Then essay 706, if or in the opinion of auditor any matter requires emphasis or any other matter para to be given. ठीक है. Then essay 710, अगर comparative information है in audit report, तो auditor comparative information के related you need to follow all the audit procedures. Then 720 means other information whatever given in audit report, so what are the reporting responsibilities of auditor in relation to that, very few. Then अगर आप reporting कर रहे हो, then your 143 comes into the picture, section 143 of Companies Act. ठीक है. 143 में clauses are from A to J, and in your study material this J has been specifically given. 143(3)J, 143 duty as to reporting, so there are certain matters on which auditor need to give the reporting. तो J में जो 3 points दिए आपको Companies Act में, auditor you need to give the comment upon pending litigations, then material foreseeable losses, and about delay in transferring the fund, delay in transferring funds to investor education, investor protection and education fund. Yes, that's the name, I forgot it, sorry. Okay, then 143(12) will come into the picture, reporting on fraud. तो fraud की reporting कब होती है? when amount involved is
more than 1 crore, then reporting is done to the central government. Okay, about this pending litigation, material foreseeable losses and transferring funds to the, ये बैंक के केस में होता ही है, all the three. फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब केसेस आएंगे. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस विल बी देयर. लिटिगेशंस होते हैं, लोन, बैंक का बिजनेस ही ऐसा है. देन डिले इन ट्रांसफरिंग फंड, अनक्लेम्ड जो भी सेविंग अकाउंट हो या फिर डिपॉजिट्स हो, देन इफ इट गोज बियॉन्ड द क्राइटेरिया गिवन, आई थिंक 7 years or some criteria is there. So if it exceeds, then banks need to transfer the fund to this account. Okay, and when we are talking about the bank audit report, then one important document comes into the picture, that is long form audit report, commonly known as, इसके एब्रीविएशन जो लिखे जाते हैं LFAR. ठीक है, तो LFAR की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इफ़ इट्स अ प्राइवेट बैंक और इफ़ इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक अगर है तो देन बिफोर 30th June every year banks need to submit this form. ठीक है, ये RBI की रिक्वायरमेंट है. ये किसको होगा? टू RBI बाय द दिस circular. RBI has made it mandatory for banks to submit the LFAR. Okay, so this is about point number 3, which was audit of accounts and auditors report.